Good morning, student. Today, in this video, I'm teaching you business studies for class 12th, and in this video, I'll explain you about second chapter, Principles of Management. In this, we will cover principles which Fayol has given. So, in my previous video, I already taught you about the nature and significance of management. Fine. Now, in Fayol's principles of management, first of all, let me explain you about Fayol's. So, about Henry Fayol, who was born in 1841 and died in 1925. Got degree in mining engineering and joined French Mining Company in 1960 as an engineer. So he's very much hard-working man right from the beginning, and he chose this profession so that he can show his expertness in this field. So right from his beginning job, he chose mining engineering and he rose to the position of mining director in 1988. Then when the company was on the verge of bankruptcy, means जब company डूबने लगी, ठीक है, at that time he was expected the challenge, and by using rich and broad administrative experience, he turned the fortune of the company. ठीक है, तो यहाँ पे जो हेनरी फ्योल था उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था how to run the firm, and if any uncertainty comes like bankruptcy, how the manager has to deal on that situation. So due to of his experience, he turned the fortune of the company. For his contribution, he is well known as the father of general management. तो ये अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका आता है who is known as the father of general management, so you have to write the Henry Fayol name. Okay, he is known as the father of general management. Now he has given 14 principles through which in any of the organization, manager gets some guidelines like division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, order, scalar chain, centralization, remuneration, interest, equity, stability, initiative, and spread the crop. So one by one, I'll explain all these principles of management which Henry Fayol has given to us. Now, principles of management developed by Fayol. So first of all, first principle, that is division of work. So division of work means the work should be divided among the employees. As in home also, if only one person do the task, he after some time he become tired or she become tired, and his efficiency would reduce after some time because of loss of energy. So same here, Fayol observed, he experiment, and he has given his first principle that work should be divided. So division of work. Work is divided in small tasks. Job in each work is done by a trained specialized, which lead to greater efficiency, specialization, increased productivity, and reduction of unnecessary wastage of movements. Okay, so in his first principle, he emphasized that we have to divide the work, and the particular task we have to give to a particular person who is specialist in doing a particular task. Okay, if we provide the work to a person who's not well as the specialist and he is not trained, then definitely he'll not perform the task as we required. Okay, so in first division, in first principles of management, he insists
and he has given that the work should be divided among the employees, and the work should be given to a trained and specialist person. Okay. Now, second, authority and responsibility. Second principle is authority and responsibility. So authority means power to take decisions, and responsibility means obligation to complete the job assigned on time. So in second principle, he forced that we must have to give authority to the people. हमें peoples को authority देनी चाहिए, power देनी चाहिए, ताकि वो decision ले और responsible बंदे हों. ठीक है? Authority and responsibility should go hand in hand, and mere responsibility without authority makes an executive less interested in discharging his duties. अगर हम authority नहीं देते हैं तो बंदे अपनी responsibilities को इतने अच्छे से नहीं fulfill कर पाते हैं. तो सेकेंड प्रिंसिपल में फ्योल्स इंसिस्ट करते हैं कि हमें अथॉरिटी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बंदा अगर निभाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले उसको अथॉरिटी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो ही विल परफॉर्म हिज टास्क वेल. ओके. नाउ सिमिलरली गिविंग अथॉरिटी विदाउट assigning responsibility make him arrogant and there is fear of misuse of power. अगर हम उसको अथॉरिटी नहीं देते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाएगा. उसको एक डर रहेगा कि अगर मैं इस टास्क को करता हूँ तो कोई इसके साइड इफेक्ट या कोई अदर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठाए. ठीक है. सो सेकेंड प्रिंसिपल में फ्योल कहते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देनी चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्सिबल होकर काम करेंगे. ठीक है. नाउ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डिसिप्लिन. सो इट इज़ द ऑब्लिगेशन to organizational rules by the subordinate. Discipline requires good supervision at all level, clear and fair agreement, and judicious applications of penalties. यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि each and every employee must be follow the discipline. ठीक है. चाहे आपका वो फर्म का सबसे लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या अपर लेवल हो, each and every level need discipline. ओके. अगर सभी डिसिप्लिन में वर्क करेंगे तो डेफिनेटली इट बिकम वेरी इजी फॉर द फर्म टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ओके. नाउ इन थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल, ही हैज फोर्स्ड दैट unity of command. So in unity of command it implies that every worker should receive orders and instruction from one superior only, otherwise it will create confusion, conflict, disturbance and overlapping of activities. Means we have to command to the workers from only one side. If more superiors and more boss give command to the employees, then automatically it make a confusion in their mind. So it implies that every worker should receive orders and instruction from one superior. सिर्फ एक ही superior से आपको order and instruction मिलने चाहिए. अगर ज़्यादा superior ज़्यादा instruction आपको मिलने लगेंगे तो you will become confused to which option or which instruction we have to be follow. Okay? और इसमें conflicts होने के chances रहेंगे, disturbance होने के chances रहेंगे. ठीक है. और work की जो activities है वो overlapping हो जाएंगी. ठीक है. Then fifth principle which Fjoll has provided us, that is unity of direction. So each group of activities having the same objective must have one head and one plan. This ensure unity of action and coordination. So unity of direction का मतलब है कि हर एक ग्रुप में each group of activity having same objective. जो भी आपके ग्रुप है, जितनी भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी एक्टिविटी सेम होनी चाहिए, उन सब का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए. ठीक है. वन प्लान होना चाहिए, वन हेड होना चाहिए. ठीक है. इससे कोऑर्डिनेट होगा वर्क में. ठीक है. जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो यूनाइट होंगे, सेम होंगे, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई चांस नहीं रहेगी और मिस्टेक होने का चांसेस कम रहेगा. तो अपने फिफ्थ प्रिंसिपल में फ्योल कहते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए. मींस जो कमांड है, जो ऑर्डर है, वो सिर्फ एक ही साइड से आना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए जिसको सभी सेम फॉलो करें. ठीक है. सबका मेन ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए. फाइन. सो दिस इज द फिफ्थ प्रिंसिपल विच फ्योल हैज़ प्रोवाइडेड अस. नाउ sixth, that is subordination of individual interest to general interest. Okay. So subordinate
सबऑर्डिनेशन मीन्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. यहाँ पे दोज हु आर वर्किंग इन अ फर्म in the form of employees or the workers, their main focus, their main objective must be achieve the organizational objective first, insist of their individual interest. ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना है, सबसे पहले हमारा जनरल इंटरेस्ट होना है अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. सो दिस इज द 6 मेन प्रिंसिपल्स विच फ्योल हैज़ डेवलप्ड फॉर अस. So the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employees. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखें बल्कि जनरल इंटरेस्ट को देखें. अगर वो जनरल इंटरेस्ट को देखेंगे तो इट बिकम वेरी इजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल वेल. नाउ इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, इसका डिफरेंस पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे कि हमने देखा, देखो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ये दो अलग अलग प्रिंसिपल्स हमें फ्योल ने प्रोवाइड किए हैं. कमांड का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा सुपीरियर है वो एक ही होना चाहिए, सेम ऑर्डर इंस्ट्रक्शन पास आउट होने चाहिए. ठीक है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन प्लान होना चाहिए, वन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. फर्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सब सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए. ठीक है, नाउ डिफरेंस पढ़ते हैं क्विकली. सो फर्स्ट, एज यूनिटी ऑफ कमांड की अगर हम बात करें, इट इम्प्लाइज दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन बॉस. यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर मिल रहे हैं तो वो वन बॉस से ही मिलेंगे. ठीक है, एक ही इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड कहता है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है इट मीन्स वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स. सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वन प्लान होना चाहिए, वन हेड होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड की अगर हम बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल. ये पर्सनल से रिलेट करता है. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. यहाँ पे हम पर्सनल की बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एनी वर्कर हु इज़ वर्किंग इन अ फर्म, सिंगल पर्सन, उसको जो काम करना है, ही वांट दैट ही मस्ट हैव द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ द फर्म ऑब्जेक्टिव. ठीक है, और सेकेंड अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट. उसको पूरे डिपार्टमेंट को लेके चलना है. ठीक है, जैसा अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, सेम एज ही हैज़ टू बी वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन. तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर आ जाता है. उसी तरह नेसेसिटी की अगर हम बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड में इट इज़ नेसेसरी फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ईच सबऑर्डिनेट. अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड हमारा एक ही रहेगा, एक ही इंस्ट्रक्शन रहेगा, तो इससे हेल्प हो जाती है हम अपने जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा इट इज़ नेसेसरी फॉर द फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच सबऑर्डिनेट. हर एक सबऑर्डिनेट की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं. और सेकेंड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इट इज़ नेसेसरी फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम रखें. सेम रखने का मतलब है ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए और वन प्लान होना चाहिए, वन हेड होना चाहिए. ठीक है, फिर यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो इट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन एंड शोज. कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही बॉस से निकल के आ रहा है. ठीक है, और अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें, इट अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा अगर हमारा एक ही प्लान है और सबको वो प्लान अपना क्लियर है. ठीक है, फिर हम अगर बात करते हैं रिजल्ट की, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की. सो इट लीड्स टू बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. इसमें जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं वो अपने सुपीरियर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे. ठीक है, क्योंकि एक ही साइड से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, एक ही बॉस है. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इट लीड्स टू स्मूथ रनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस. फर्म को स्मूथली रन करने में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है, क्योंकि इसमें वन प्लान होता है, वन ऑब्जेक्टिव होता है, और जितने भी आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सिमिलर ऑब्जेक्टिव को देख करके काम करती हैं. ठीक है, सो दिस मच इज़ इनफ इन टुडेज वीडियो. So thank you and have a nice day, beta.